Hello friends, I am Dr. Dhananjay Singh and welcome to my YouTube channel. Today, lecture topic morphology of bacteria. Depending on their shape, it is classified to several types. Cocci, which is the berry shape, bacilli, which is the rod shape, spirochetes, which is the spiral shape, एक्टोमाइसिस एक तरह से फंगी होते हैं जो कि कॉलोनी के रूप में होते हैं. माइकोप्लाज्मा इसका कोई शेप नहीं होता क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता. और रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और दूसरे पैरासाइट की तरह होते हैं. इन्हें पहले वायरस ग्रुप में रखा गया था परंतु इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रुप में. एग्जाम्पल ऑफ कोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड टेट्राकोकस, सार्सिना एंड स्ट्रेप्टोकोकस. एग्जाम्पल ऑफ Bacillus, Spirulum and Vibrio. Anatomy of bacteria. The outer layer of cell envelope of a bacterial cell consists of two components, cell wall and cytoplasmic और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आइए जानते हैं सेल वॉल क्या होता है. बैक्टीरियल सेल वॉल. सेल वॉल इज ए टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द like a cell. The cell wall has following function: shape of the cell, provide the protection, rigidity upon bacteria, it take part the cell division, it possesses the some antibiotics, lysozyme and bacteriophage. Component of bacterial cell wall. The rigid part of the cell wall is peptidoglycan, which is a murine or mucopeptide composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine molecule से alternating in chain cross linked by peptide subunits. तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स है जिसमें पेप्टाइड चेन वाइट चेन से दिखाया गया है और जो ब्लैक चेन है वो पेंटापेप्टाइड ब्रिज है. एन एस्टिल ग्लूकोसामिन वाइट सर्कल से एंड ब्लू सर्कल जो है एन एस्टिल ग्रामिक एसिड है. कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल. मेनली बैक्टीरियल सेल जो होता है वो मिरामिक एसिड एंड एन एस्टिल ग्लूकोसामिन से मिलकर बना होता है. और इसका स्ट्रक्चर्स आप इस फिगर में देखिए जिसमें कि क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल कॉमन टू बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है. इसमें कि पेप्टाइड चेन वाइट चेन से दिखाया जा रहा है, ब्लैक चेन पेंटापेप्टाइड ब्रिज है और एन एस्टिल ग्लूकोसामिन वाइट सर्कल से है एंड ब्लू सर्कल से एन एस्टिल मिरामिक एसिड है. सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which is more complex than gram positive bacteria. Gram negative bacteria is a 4-layer outer membrane which is contain the lipopolysaccharide and next layer lipoprotein and next layer peptidoglycan and inner layer cell membrane. Outer membrane and inner membrane space is known as the periplasmic space and gram positive bacteria has more thicker peptidoglycan layer and cell membrane. It is only 2 layers, which is the inner layer is formed phospholipid and is cytoplasmic membrane. It is a thick, elastic, semi-permeable layer which is lies beneath the cell wall, separating it from the cell cytoplasm. It acts as a semi-permeable membrane controlling the inflow and outflow of metabolism to and from the protoplasm. It also contains cytochrome oxidase, enzyme of tricarboxylic acid cycle and enzyme necessary for the cell wall synthesis. Third is cytoplasm. The bacterial cytoplasm is a colloidal system containing a variety of organic and inorganic solute in a viscous watery solution. It lacks mitochondria and endoplasmic reticulum of eukaryotic cell. It contain ribosome, mesosome, vacuoles and इंक्लूजन. जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं और इसमें मेनली राइबोसोम, मेसोसोम एंड वैक्यूल्स पाए जाते हैं. 4 स्ट्रक्चर आर न्यूक्लियस. बैक्टीरियल न्यूक्लियस हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और बैक्टीरियल डीएनए जो होता है हैप्लॉइड होता है जो कि बैक्टीरियल डीएनए को जेनेटिक कैरेक्टर को replicate by the simple fission and maintain the bacterial genetic characteristic. Bacteria may possess extra nuclear genetic material in the cytoplasm consisting of DNA named as plasmid or episphere. Bacterial capsule and slime layer. It is amorphous viscous bacterial secretion which surrounds some bacteria as their outermost layer. ये बैक्टीरियल का outermost layer रहता है जो कि सेल वॉल द्वारा secretion से बनता है. When it diffuses into the surrounding medium and remain loose under marketed secretion and remain as a loose under marketed secretion, it is known as a slime layer. When this secretion is organized into a sharply defined structure which is known as capsule. तो यहाँ पे आप लोग कैप्सूल का बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. यहाँ पे कैप्सूल है और फिमरी है, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल्स में. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है. फंक्शन ऑफ कैप्सूल.
कैप्सूल बैक्टीरिया को इन्हांस करता है इनहिबिटिंग फैगोसाइटोसिस। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस सच एज बैक्टीरियोफेज, फैगोसाइट्स, एंजाइम्स। कैप्सुलर एंटीजन इज स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया एंड कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लैप्सिला स्पेसीज, बैसिलस एंथ्रेसिस and Haemophilus influenza. Next structure is flagella. Flagella are cytoplasmic appendages producing through cell wall. These are thread-like structure composed of a protein, flagellin protein. They are organ of locomotion. Flagella एक तरह का बैक्टीरिया में लोकोमोशन ऑर्गन होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये सेल वॉल से सिक्रेशन से बनता है। पार्ट एंड कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। ईच फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फिलामेंट आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, फ्लैजिलिन हुक सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एल रिंग, पी रिंग और एसएम रिंग, पेप्टाइडोग्लाइकान। यहाँ पे एमओटी प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और एमओटी प्रोटीन। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। वी सी द फिलामेंट्स। फिलामेंट्स इज फ्लैजिलिन and flagellin attached to hook. Hook is attached to basal body. Basal body contain 3 ring, L ring, P ring and SM ring. इसमें mainly outer membrane होता है और outer ring होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में absent होता है। This is more important the structure of flagella. Next topic is arrangement types of flagella, which is mainly 4 types: monotrichous, amphitrichous, lophotrichous, peritrichous। monotrichous में सिंगल एंड पे फ्लैजिला पाया जाता है, एम्फीट्राइकस में 2 एंड पे फ्लैजिला पाया जाता है, लोफोट्राइकस में एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला पाया जाता है, पेनिट्राइकस में पूरी बॉडी में फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं। मोनोट्राइकस का विब्रियो कोलेरी, एम्फीट्राइकस का हेलिकल लीजेंस फेसेली एंड लोफोट्राइकस स्पाइरिला एंड पेरिट्राइकस साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर Fimbriae. These are hair-like appendages projecting from the cell surface as straight filament. They are also called villi. Fimbriae को हम लोग villi के नाम से भी जानते हैं। They are antigenic and Fimbriae is composed of protein called pilin. ये 3 टाइप्स के होते हैं: common villi, sex or fertility villi and कोलिसिन पिलाई या कोलफस्ट पिलाई। इनका फंक्शन होता है एडहेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर ना करना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।